بہت ضخیم کتاب ہے، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں تمام مذہبی احکام اور اس کے بجا آوری کے طریقے کی تفصیل نہایت واضح طور پر پیش کی گئی ہے۔ الاجتہاد میں اسلامی عقائد کی تشریح عقلی بنیادوں پر کی گئی ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ اسلامی عقائد عقل کے مطابق ہے۔ یہ پوری کتاب سوال و جواب کی صورت میں لکھی گئی۔ امہات العامہ، امت کی مائیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں لکھی گئی ہے، اور اس کتاب میں تعداد ازواج کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، یعنی کتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تھے۔ اس کی اشاعت پر بڑا ہنگامہ ہوا کیونکہ اس میں نذیر احمد نے محاورات کے استعمال کا شوق جا ہوا بیجا پورا کیا تھا، جس سے مکہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے سلسلے میں سینے پر مونگ دانا ڈالنا اور چٹک گئے کے محاورے استعمال کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کتاب کے تمام نسخے جمع کر کے جلا دیے گئے۔ بعد میں ان کے فرزند بشیر الدین نے قابل اعتراض حصے حذف کر کے اس کتاب کو شائع کیا۔ اس کے بعد نذیر احمد نے علم منطق پر بھی ایک کتاب مبادئ الحکمت لکھی تاکہ منطقی طور پر اعتراضات کے تردید کی جا سکے، مدلل طور پر اپنی بات کہی جا سکے اور حق کی حقانیت کو ثابت کیا جا سکے۔ خود نذیر احمد کے الفاظ میں انہوں نے اس رسالہ اردو میں ضروری مسائل علم منطق جمع کر دیے۔ نذیر احمد بہترین خطیب بھی تھے، اچھے لیکچرر تھے۔ ان کے لیکچر کتابی صورت میں شائع کیے گئے۔ چند پند بھی ان کا ایک رسالہ ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں نصیحت آمیز باتیں بیان کی گئی۔ منتخب الحقائق میں مختلف حقائق کا انتخاب ملتا ہے۔ اس کے بعد موازن حسنہ میں انہوں نے اپنے لڑکے بشیر الدین کو بعض اخلاقی اور مذہبی نکات سمجھائے ہیں۔ نذیر احمد کے اب ناول پر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ میرات العروس نذیر احمد کا پہلا ناول ہے جو 1869 میں 1869 میں شائع ہوا۔ کل چونکہ ہم لوگ کو ناول سے ریلیٹڈ 2 سوال آئے تھے۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ سر جی یہ جو ابھی میرات العروس کے بارے میں جیسے سٹارٹ کیے تھے نا، اس کو ایک بار پھر سے سٹارٹ کر دیجیے گا۔ جیسے آپ بولے نا ڈپٹی نذیر احمد کی پہلی ناول ہے، وہاں سے پھر سے سٹارٹ کیجیے نا۔ ہاں، تو ابھی ہم بتا رہے تھے کہ کل ہم لوگ یہی ناول سے ریلیٹڈ 2 سوال آیا تھا۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ اسرار معابد جو پریم چند کا ہے وہ نامکمل ہے۔ یہ صحیح بات ہے، یہ نامکمل ہے، لیکن دوسرا آیا تھا کہ یہ 2 بار شائع کیسے ہوا۔ تو دیکھیے 1930 سے 1905 کے درمیان میں یہ قسط وار رسالے میں اخباروں میں شائع ہوا تھا، مکمل طور پر کتابی شکل میں شائع نہیں ہوا تھا۔ یہ ڈاؤٹ کلیئر کر دیے۔ اور دوسرا تھا کہ منگل سوتر ادھورا تھا، تو ہاں وہ منگل سوتر ادھورا تھا اور بعد میں اس کے بڑے بیٹے نے اس کو کلیئر کیا۔ ہاں، تو ابھی ہم کو بتایا گیا کہ پھر اس کو ریپیٹ کیا جائے۔ جیسے دیکھیے نذیر احمد عام طور پر اردو کے ناول نگار کا حیثیت سے مشہور ہے، یہ ہم لوگ جانتے ہی ہیں، اور وہ عربی کے بہت جید عالم بھی تھے۔ عربی پر انہوں نے کئی کتابیں لکھی، ان کا نام ابھی ہم لوگوں نے گنایا، کہ اس کے علاوہ رسالے بھی نکالے، قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ ناول میں آتے ہیں نذیر احمد کے ناول میرات العروس نذیر احمد کا پہلا ناول ہے اور 1869 میں یہ شائع ہوا۔ یہ ناول کیوں لکھا گیا اور کس طرح شائع ہوا، اس کی تفصیلی بیان ہم لوگ آگے کریں گے۔ دوسرا آیا بنات الناس، یہ میرات العروس کا دوسرا حصہ ہے۔ میرات العروس کی اصغری بعد میں بچیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام اپنے گھر پر کرتی ہے اور انہیں امور خانہ کے علاوہ جدید علوم سے بھی واقف کرواتی ہے۔ یہ ناول
1872 में 1872 में लिखा गया। तौबतुन नसूह तीसरा नावल 1877 1877 में लिखा गया। नसूह अपनी पिछली जिंदगी से तौबा करके शरई अहकामात पर अमल पैरा होता है और अपने पूरे खानदान को मजहबी उसूलों पर कारबंद रहने की तलकीन करता है। इस सिलसिले में नसूह को जो कामयाबी और नाकामियां पेश आती है, उन्हीं से इस नावल की सूरतगिरी होती है। नेक्स्ट है मोहसनात या फसाना मुब्तला। यह 1885 में 1885 में शाये हुआ। एक से ज्यादा शादियां करने पर इंसान जिन मसाइब में मुब्तला हो जाता है, उसकी कहानी है इसमें। पांचवा में आया इब्नुल वक्त 1888 में शाये हुआ। इसमें गदर के बाद के हालात पेश किए, तहजीब नौ को किस कदर अपनाना चाहिए और तर्ज कोहन पर किस हद तक अड़ना जरूरी है, यही इस नावल का मौजू है। छठा है अय्यामा। इस नावल का सने आसार 1891 1891 है। अकद बेवा की शादी की अहमियत और जरूरत इस नावल में बहुत मौसर अंदाज में पेश किया गया। और सातवां नंबर पर जो नावल आए हैं वो रुआए सादका नजीर अहमद का आखिरी नावल है, जो 1894 में 1894 में शाये हुआ। सादका उस नावल का मरकजी किरदार है जो सच्चे ख्वाब देखती है। मौजू ये है कि अकल के जरिए मजहब को नहीं समझा जा सकता, बल्कि पुख्ता अकीदा ही मजहब के मानने वालों के लिए जरूरी है। तो ये 7 नावल जो है डिप्टी नजीर अहमद साहब ने लिखे। उर्दू का पहला नावल के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि हम लोगों को मिरातुल उरूस नहीं पढ़ना है, हम लोगों को तौबतुन नसूह पढ़ना है ना। हमारे नावल में ये नहीं है, हमारे सिलेबस में, तो हम लोग उसको अभी थोड़ा देर के लिए छोड़ते हैं। हम लोग आगे बात करते हैं कि नजीर अहमद की नावल निगारी की इब्तिदा कैसी हुई। तो देखिए, नजीर अहमद ने जब मिरातुल उरूस लिखी, उस वक्त तो वो नहीं जानते थे कि वो उर्दू में एक नई सिन्फ अदब का इजाफा कर रहे हैं। नजीर अहमद के जमाने में उर्दू में बच्चों के लिए किताबें नहीं थी, इसलिए कि फारसी अरबी के कायदे या इब्तिदाई किताबें पढ़ाई जाती थी। यही वजह है कि जब फोर्ट विलियम कॉलेज कायम हुआ और अंग्रेजों को इब्तिदाई किताबें पढ़ाने की जरूरत पेश आई, तो खुद वहां ऐसी किताबें मुरत्तिब की गई। उर्दू के कायदे कवायद की किताबें, लुगत वगैरह फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखे गए, क्योंकि वहां बड़ों माने एडल्ट्स के लिए किताबें लिखी गई थी। इसी वजह से उनमें बच्चों की जरूरतों का ख्याल नहीं रखा गया था, जैसे माफुकुल फितरत व मुहर्रिकुल उकूल, वाक़ियात, इश्क मोहब्बत की बातें। हद ये कि जिनसी इख्तलात का भी बयान मौजूद था, जो बच्चों के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं था। इसके अलावा नजीर अहमद का अखलाकी नुक्ते नजर भी बहुत ही सख्त था। शेख सादी की अखलाकी किताब गुलिस्तान को भी वो कागज की चिप्पियां लगाकर या स्याही फेर कर पढ़ाना जरूरी समझते थे। तौबतुन नसूह में नसूह अपनी बीवी को गुलिस्ता बोस्ता पढ़ाता है। नसूह और उसकी बीवी में जब इस बारे में गुफ्तगू होती है तो नसूह कहता है, भला तुमको ये भी याद है कि मैं तुम्हारे सबक से आगे जा बजा सत्रों की सत्रों पर स्याही फेर दिया करता था। बाज दफा सफ़े के सफ़े आ पड़े हैं कि मुझको ऊपर से सादा कागज लगाकर उनको छुपाने की जरूरत हुई। जब गुलिस्ता के बाज हिस्सों पर स्याही फेरना उनको जरूरी मालूम हुआ, तो बागो बहार या फोर्ट विलियम की दूसरी किताबों का हाथ लगाना भी
नामुमकिन था। इसी सबब से उन्होंने अपने बच्चों के लिए खुद किताबें लिखी। उन्होंने अपने लड़की के लिए मिरातुल उरूस के इनवान से एक किस्सा लिखा और अपने बेटे के लिए चंदपंद के नाम से दूसरी किताब लिखी। नजीर अहमद उन किताबों को शाये करने का भी इरादा नहीं रखते थे। इत्तेफाक से ये किताबें शाये हुई। नजीर अहमद मुलाजमत के सिलसिले में किसी दौरे पर थे। वहीं नाजिम तालीमात भी अपने किसी काम के सिलसिले में आए थे। जब वो हवाखोरी के लिए निकले तो नजीर अहमद के बेटे बशीर भी उस वक्त निकले। नाजिम तालीमात कमिश्नर ने पूछा, किसके बेटे हो और क्या पढ़ते हो? बशीर ने चंदपंद और मिरातुल उरूस के नाम बताए। नाजिम तालीमात को हैरानी हुई कि इस नाम की किताबें भी किसी भी कोर्स में शामिल नहीं थी। बशीर से उन्होंने कहा कि वो किताबें ले आए। मिस्टर कर्सन ने वो किताबें रख ली। दूसरे दिन जब मिस्टर कर्सन से नजीर अहमद की मुलाकात हुई तो उन्होंने मिरातुल उरूस की बहुत तारीफ की और उसे शाये करने का मशवरा दिया। इसकी इशाअत पर 1000 रुपए नजीर अहमद को इनाम भी मिला था। नजीर अहमद ने जब अपना नावल मिरातुल उरूस लिखा तो उन्हें यह पता नहीं था कि वो उर्दू का पहला नावल होगा। तो अपनी बच्चियों के लिए एक ऐसा किस्सा लिख रहे थे उस वक्त जो दिलचस्प होने के साथ साथ सबक आमूज भी हो। लेकिन बाद में यह एहसास हुआ कि नजीर अहमद ने मिरातुल उरूस लिखकर उर्दू में नावल निगारी का आगाज किया। नजीर अहमद ने न सिर्फ उर्दू नावल का आगाज किया बल्कि उर्दू नावल निगारी को ऐसी बुनियादी फराहम कर दी जिस पर आज उर्दू नावल की इमारत खड़ी है। उसके बाद मिरातुल उरूस तो हम लोग को नहीं पढ़ना है और उसका तर्जिया भी नहीं पढ़ना है। ये यहीं पर खत्म हो रहा है। ठीक है, नजीर अहमद अब पढ़ेंगे हम लोग उसका क्या बोलते हैं, तौबतुन नसूह के बारे में, है ना। तौबतुन नसूह के बारे में आप लोगों को खैर हल्के फुल्के ज़िया उर्दू में मिलेगा ही, है ना। देखिए तौबतुन नसूह जो है वो 1874 में लिखा गया। नजीर अहमद ने बिनातुन नास के दिबाचे में लिखा है कि तालिब दीनदारी का एक मजमून और रह गया। अगर हयात मुस्तार बाकी है तो इंशाअल्लाह बशर्ते खैरियत अगले साल तक वो भी एक किताब के पैराए में पेशकश नाजरीन किया जाएगा। लिहाजा वो किताब तौबतुन नसूह के नाम से शाये हुई। चलिए अब मेरे यहाँ बिजली तो आ गई बस। एक मिनट रुक जाइए। चलिए आओ, सबको नजर आ रही है ठीक से? बच्चे लोग बोलिए। आवाज वगैरह सब ठीक है तो? जी सर। देखिए नजीर अहमद साहब
कि नावल पर अभी हमने बात किया है कि उन्होंने 7 नावल लिखे थे। सर सुनिए ना, आप अपने फोन को पहले ऐसे ऐसे करके स्टैंड कीजिए तो। कैसे करके? हाँ, अभी आप कैसे रखे? अभी जिस एंगल से रखे ना उस एंगल से चेंज कर। नहीं वैसे नहीं, ऐसे सीधा रखिए। ऐसे ऐसे? हाँ ऐसे रखिए तो। सीधा स्टैंड करके रखेंगे तो नहीं ना होगा, क्योंकि ये जो है स्टैंड में तो दबा के रखा हुआ है ना। मीन्स सर क्या? आपका कहने का मतलब है इस तरह से स्टैंड कर देना। जी हाँ, और आपको फिर सामने में रहे बस। थोड़ा सा फोन को ऊंचा कीजिए, रुकिए मैं और ऊंचा कर दें? जी हाँ, थोड़ा और ऊंचा कीजिए। चलिए ठीक है, और करें? हाँ ठीक है, थोड़ा सा दूर कीजिए ना सर फोन को। चलिए। और उसका जो फ्रंट कैमरा है ना उसको हल्का सा पोंछ दीजिए, थोड़ा ब्लर हो रहा है। अब हो गया सर। ठीक है, हाँ अब सब ठीक है तो? जी सर, अब सब ठीक है। चलिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि किताब का नाम कुरान मजीद से लिया गया है, ये तौबतुन नसूह, जहां मुखलिसाना तौबा के माने में तौबा नसूहन के अल्फाज मौजूद हैं। तौबतुन नसूह का मरकजी ख्याल अंग्रेजी नावल निगार डेनियल डीफो के नावल फैमिली इंस्पेक्टर से माखूज है। डेनियल डीफो का एक नावल है द फैमिली इंस्पेक्टर, उनसे माखज करके ये तौबतुन नसूह लिखा गया। नजीर अहमद ने अपने मौजू व मकसद की वजाहत करते हुए लिखते हैं कि इस किताब में इंसान के उस फर्ज का मज़कूर है जो तरबियत औलाद के नाम से मशहूर है। इस किताब के तसनीफ करने से मकसूद असल ये है कि उस फर्ज के बारे में जो गलतफहमी अमूमन लोगों से वाक़ई हो रही है उसकी इस्लाह करना है। यानी तौबतुन नसूह किताब उन्होंने इस्लाह के मकसद से लिखा। बाज़ नाक़िदीन ने फ़िक्र फ़न के एतबार से तौबतुन नसूह को उर्दू का पहला बाकायदा नावल करार दिया है। तौबतुन नसूह कुल 12 फसलों पर मुश्तमिल है। इसमें क्या कहा गया है कि तौबतुन नसूह में नावल तौबतुन नसूह का किस्सा नसूह के ख्वाब से शुरू होता है। वो ख्वाब जो नसूह ने देखा तमाम किस्से की जान है। क्या कहते हैं कि नसूह ख्वाब में हश्र के मैदान में अपने बाप को देखता है और जिसके हाथ में उसका नामे अमाल है। जैसे हम लोग सब ये मानते हैं और जानते भी हैं कि जब हमारा हश्र का मैदान होगा, हमारे सामने हिसाब किताब की बारी आएगी तो हर इंसान के हाथ में नामे अमाल दिया जाएगा। उसमें वो सारे चीज लिखे हुए होंगे जो हमने अपने जिंदगी में किया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। नामे अमाल उसी को कहते हैं। नसूह बाप का नामे अमाल नामा देखता है तो थर्रा उठता है, क्योंकि दुनिया के तमाम बुराइयां उनके आमाल नामा में मौजूद थी और बाप फर्द जुर्म के ताल्लुक से तवील बयान देता है। ये पहले हिस्से में ये बात, क्योंकि मैंने बताया 12 फसलों में है। दूसरा फसल में है इस कहानी का कि नसूह और फहमीदा के दरमियान बातचीत का मंजर सामने आता है और यहाँ यह तय होता है कि नसूह जो शोहर है
लड़कों की इस्लाह करेंगे और फहमीदा उसकी बीवी है वो लड़कियों की। सबसे पहले छोटे बच्चों की इस्लाह का काम शुरू हुआ। तीसरा फसल में फहमीदा अपनी बेटी हमीदा से बातचीत करके नसू को बताती है। चौथा फसल में नसू छोटे बेटे सलीम से गुफ्तगू करता है। मालूम होता है कि सलीम बहुत कुछ सुधर जा चुका है और हजरत बी और उनके लड़कों के असर ने पहले ही उसे इस राह पर लगाया है जो नसू उसे देखना चाहता था। पांचवा फसल में फहमीदा और उसकी बेटी नईमा की लड़ाई का बयान है, जिसमें नईमा नमाज पढ़ने को उठक बैठक करती है ना। छठे फसल में नसू अपने मंझले बेटे अलीम की इस्लाह करता हुआ नजर आता है। सातवां फसल में नसू और बड़े बेटे कलीम की कशमकश सामने आती है, जो इस किस्से की खास कशमकश है। कलीम को पहले मंझला भाई और फिर माँ समझाती है, मगर वह बाप के पास जाने से इनकार करता है। वह उस तहजीब में रचा हुआ है जो मुगलिया सल्तनत के आखिरी दौर में मौजूदा राइज थी। यहाँ दोनों छोटे भाई बड़े भाई कलीम को समझाते हैं और कलीम इस तहजीब की नुमाया गिनवाता है। माँ भी समझाती है, मगर कलीम बात को नहीं मानता है। आठवां फसल में नईमा को उसके खालाजाद बहन सालहा राहे रास्त पर लेकर आती। नवे फसल में कलीम नाखुश होकर घर छोड़कर चला जाता है और नसू उसका तकल्लुफ खाना, जो इशरत मंजिल और खुलवत खाना के नाम से 2 कमरों पर मुश्तमिल था, उसमें मौजूद किताबों को जला देता है। 10वें फसल में किस्सा नसू के घर से बाहर निकलता है। कलीम की मिर्जा जाहिरदार बेग से मुलाकात होती है। कलीम पकड़ा जाता है और नसू उसे रिहा करवाता है। फिर फितरत से कलीम की मुलाकात होती है और कलीम जायदाद बेचकर उसके साथ कुल छिर्रे उड़ाता है। 11वीं फसल में कलीम रियासत दौलताबाद जाकर कसीदा लिखता है ताकि दरबार तक रसाई हो सके, लेकिन मालूम होता है कि रियासत के बिसात उलट गई है और रेजिडेंट ने अमूर रियासत का एहतमाम एक कमेटी को तफवीज कर दिया है। वो सदर आजम से मिलता है जो एक बूढ़े से मौलवी है। वो उसे रियासत की फौज में भर्ती कर लेते हैं। और 12वीं और आखिरी फसल में नईमा का सुधर जाने और फिर से घर आबाद होने और साथ ही कलीम के मजे और उसके आखिरी वक्त के हालात का बयान है। इसमें मेन किरदार क्या क्या है? नसू, कलीम और जाहिरदार बेग, तौबतुन नसू के ये 3 मरकजी किरदार हैं। नसू खानदान का सरबराह और फहमीदा का शोहर है। फहमीदा नसूह की बीवी है। अलीम नसूह का मंझला बेटा है। हमीदा नसूह की मंझली बेटी है। सालहा जो नईमा के खालाजाद बहन है और नईमा की सहेली भी है। फितरत कलीम का करीबी दोस्त है। कलीम नसूह का बड़ा बेटा है। सलीम नसूह का छोटा बेटा है और नईमा नसूह की बड़ी बेटी है। मेन किरदार यही याद रखिएगा, मिर्जा जाहिरदार बेग कलीम का दोस्त रहता है। यानी तौबतुन नसू के मरकजी किरदार पर हम लोग बात करें तो इस तरह से भी याद करें कि शोहर का नाम नसू है और बीवी का नाम फहमीदा है। उनके 3 बेटे हैं, कलीम, सलीम और अलीम। तो कलीम बड़ा है, अलीम मंझला है और सलीम छोटा है। 2 बेटी है जो नईमा नसू की बड़ी बेटी है, हमीदा नसू की मंझली बेटी है। फितरत कलीम का दोस्त रहता है। मिर्जा जाहिरदार भी कलीम का दोस्त रहता है। तो ये किरदार ही आज मतलब जो है तौबतुन नसू में है। और तौबतुन नसू से अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादातर आपको यही सब क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें तौबतुन नसू का क्या क्या किरदार है, कभी कभी वो पूछ लेते हैं।
और वो किस उसका लिखने का मकसद क्या था, क्यों लिखा गया। नजीर अहमद साहब नावल नहीं लिखना चाह, उनको पता नहीं था कि नावल जो वो लिख रहे हैं वो एक अद्भुत नावल होगा, आगे चल करके नावल का आगाज होगा उसमें। ये भी याद रखिएगा कि तौबतुल नसूह को बाज़ नाक़िदीन ने कहा है कि वो बाकायदा उर्दू का पहला नावल है। हालांकि उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूस को कहा गया। तो इसमें मैन क्वेश्चन अभी 2023 वाले का जो क्वेश्चन मैंने भेजा है तो उसको देखिएगा पूरा क्वेश्चन और पढ़िए। तो नॉवेल से बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछा गया। 2019 वाला क्वेश्चन आप उठाइए जिस वक्त हम मतलब उस वक्त में देखिएगा 12-13 नॉवेल से ही क्वेश्चन पूछे गए। तो ये तादाद आगे पीछे बढ़ते रहती है, कभी कम पूछा जाता है कभी ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन मैन पॉइंट को याद रखिएगा। इसका पहला साले वफात याद करिए, ज़मानी तरतीब से पूछता है वो 4 या 5 नावल निगार का नाम दे देगा, उसका पहला वफात मैंने पैदाइश पहले किसके हुए, फिर बाद में इस तरह से तरतीब में सजाना है। या कभी कभी साले वफात के ज़मानी तरतीब से भी ये सवाल पूछ जाता है। तीसरे तरफ से ये सवाल नॉवेल से ये भी आते हैं कि एक तरफ मुसन्निफ का नाम एक तरफ कुतुब का नाम दे दिया जाता है, उसको मिलाना पड़ता है, सुमेल करना पड़ता है, जुमरे को मिलाना पड़ता है। ये ज्यादातर पर आप देखिएगा इस तरह के सवाल नॉवेल में आते हैं। तो इस तरह से हम लोग नजीर अहमद का एक चैप्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा है जो उनके हयात से रिलेटेड था, और तौबतुन नसूह के बाद में दूसरा नॉवेल हम लोगों का है जो सिलेबस में है, पढ़ना है अब्दुल हलीम शरद साहब का फिरदौस